افطاری میں خصوصی خوشامدید آپ کو کہتے ہیں. رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں ہیں. ہماری افطار ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ ہو گیا ہے. نعت رسول مقبول آپ سن رہے تھے, اور اسی طرح سے ہمارے سیگمنٹس جو آپ دیکھتے ہیں, سٹار ڈیبیٹر, سٹار نعت خواں, سٹار کوئزر, وہ بھی ساتھ ساتھ ہم جاری رکھیں گے. اور عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ وہ بھی ہوگا. علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات بھی کریں گے. اور آج ہم خاص طور پر بات کریں گے, جس طرح ہم نے یہ شروع سے ہی یہ کوشش کی کہ ہم, چونکہ آغاز ہے رمضان المبارک کا, آج دوسری افطاری ہے, کہ ہم یہ بات کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا کیسے ہے, کیا کیا چیزیں ہیں کہ ابھی سے ہم اس کی مشق کر لیں. تو آج ہم خاص طور پر بھی بات کریں گے کہ گناہوں سے بچنا کیسے ہے. یہ تو ہم نے بات کی, علماء سے جانا کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے, لیکن وہ کس طرح سے. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے, لیکن گناہوں سے بھی رکنا ہے. تو اس بارے میں خاص طور پر بات کریں گے. اور ساتھ یہ بھی کہ اب جس طرح دوسری افطار میں ہم ہیں, اور روزے میں ہم نے کیا کیا کام ہمیں زیادہ کرنے چاہیے, کس طرح زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور کیسی پریکٹس ہم نے کرنی ہے. اچھا, دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مہینے کا مسلمان, میں کل یا پرسوں بھی بات کری تھی کہ ایک مہینے کا مسلمان کے مہینے کے لیے لوگ تمام نیک ہو جاتے ہیں, پھر ایک مہینے کے بعد جب رمضان ختم ہوتا ہے عید کے بعد دوبارہ پہلے جیسے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوشش ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے کہ ہم ایک مہینے میں جو چیز پریکٹس کریں ہم اس کو اتنی عادت بنا لیں, اتنے دل سے پریکٹس کریں کہ اگلے 11 مہینے خود ہماری عادت بن جائے. جب وہ عادت بن جائے گی تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی. اچھا, سحری میں بھی ہمارے ساتھ تھے علامہ امین شہیدی صاحب, آج افطار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی ابو محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور آج ہمیں جوائن کریں مولانا مفتی سعید ابرار بخاری صاحب, جوائنٹ سیکرٹری ہیں امت واحدہ پاکستان, وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے, سوال و جواب کا ہوگا. اور یکم رمضان سے ہی ہمارے ساتھ ہیں مفتی ولی محمد خان صاحب مظفر صاحب, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور پروفیسر صاحب بھی ساری میں بھی ہمارے ساتھ تھے, پروفیسر یونس صدیقی صاحب, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو سارے علماء سے بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے, اور خاص طور پر بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہاں جی, تو جس طرح سحری میں بھی ہم نے بات کی تھی رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے, کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے, تو یہ بھی صحیح ہے. ویسے ولی مظفر صاحب بڑے دلچسپ, بڑے ہی حقیقت پسند, اچھا, اور دل کے بڑے ہی صاف اور خوشبودار آدمی. اچھا, آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا, اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف چلیں, میرے ذہن میں اچھا ایک لائٹر نوٹ پہ سوال, اسامہ بھائی ایک لائٹر نوٹ پہ ایک سوال کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو عالم دین ہوتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, بہت سیریس ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, سنجیدہ ہوتے ہیں, کیونکہ مذہب پہ بات کرتے ہیں, مشکل ایک سبجیکٹ ہے. لیکن میرے خیال سے سینس آف ہیومر اچھا سا, یا کسی کے ساتھ مزاح کی بات کرنا, یا تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بات کرنا, یہ ایک شخصیت کو میرے خیال سے مکمل کرتا ہے. آپ اگری کریں گے؟ ہاں بالکل, خوش اخلاقی تو بہت بڑی چیز ہے, مذہب سکھاتا ہے, ہے نا. تو آپ, جب میں نے آپ کو بھی مذاق کرتے ہوئے دیکھا نا بڑا پیار سے آپ ان سے بات, تو وہ بڑا مجھے بڑا کیوٹ سا لگا, بڑا اچھا لگا اسامہ بھائی. میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عالم دین صرف سیریس بات کر سکتے ہیں. فضا, جب میں پہلے دن جب آیا نا تو میں نے وہی آپ کا جملہ دہرایا فوری کہ کیا تم اسٹرائک کرو گے, تم سرجیکل اسٹرائک کرو گے, شکل دیکھیے اپنے امودی کو, چلتا ہے ہاں انڈیا اور غازی صاحب کو. بالکل بالکل, تو یہ اچھا لگتا ہے نا ساما بھائی, اچھا لگتا ہے, بڑا ایک نیچرل لگتا ہے. ہاں جی, نہیں بڑا اچھا ہے. تو اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میرے خیال سے آپ نے انٹرو تو کروا دیا, تمام علماء کا تعارف کروا دیا, تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ رمضان کیسے گزارا جائے. جی مفتی صاحب, جس طرح بات ہو رہی تھی ابھی, جیسے ہی ہم آئے ہیں تو بات ہوئی, ہم نے سیکھا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی, ہر چیز کا ہے, لیکن ہم نے یہ بچنا کس طرح ہے گناہوں سے, کیا کیا جائے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن کریم میں لفظ تتقون یا تقوی کا جو ذکر ہے یہ 89 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یا ایھا الناس کہہ کر پوری کائنات کو بے شمار مرتبہ مخاطب فرمایا, لیکن یا ایھا الذین آمنوا یہ خصوصی خطاب ہے, خصوصی لوگوں سے, ایمان والوں سے. اور آمنوا کہنے کے بعد اللہ جل شانہ نے پہلا جملہ جو استعمال فرمایا وہ کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ. نکاح کے موقع پر ہم جو 3 آیات پڑھتے ہیں خطبہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی, حالانکہ اس میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے, لیکن تقوی کا ذکر ہے. اس سے مجھے حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ جمعہ یاد آیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, تشریف لائے خطبہ جمعہ کے لیے, تو کسی نے کہا جی آپ آرام فرمائے. فرمایا مختصر خطبہ. مختصر خطبہ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا, فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور پھر اس کے بعد آخری اس کی جو خلاصہ تھا وہ کیا بیان فرمایا, وہ بڑی سننے والی بات ہے. جی, فرمایا تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. کیا بات ہے, دیکھیں تنہائی میں, ہم تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. آج دیکھیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرنا, اللہ کا تصور یہ قائم, یہ جو روزہ یہ مشق ہے,
یہ مشق کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہم ٹھنڈے کمرے میں، بند کمرے میں پانی پی سکتے ہیں، لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی فریج موجود ہے، پانی موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم کیوں نہیں استعمال کرتے مشروبات کو؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو یہ مشق یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کا یہ ایک تصور قائم کرنا ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ آج ہم جسم کے اعتبار سے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، خوشبو ہم برانڈ کی استعمال کرتے ہیں، جوتے کپڑے ہم برانڈ کے استعمال کرتے ہیں۔ سوچ کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری روح بھی اتنی پاکیزہ ہے؟ کیا یہ جو ہمارے پاس ایک سیل ہے، ہم میں سے 100 میں سے کتنے % لوگ ایسے ہیں جو اس کا پاسورڈ کھول کر دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں، یہ پاکیزہ ہے؟ تصور یہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا، یا ویلتا یا لیتنی، یہ جملہ کتنی مرتبہ؟ 14 مرتبہ استعمال ہوا، لیکن 14 میں سے ایک مرتبہ یہ جملہ ڈبل استعمال ہوا، یا ویلتا لیتنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی افسوس پر بھی آپ افسوس کریں گے، حسرت پر بھی آپ حسرت کریں گے، آپ کا افسوس بھی افسوس کرے گا، حسرت بھی حسرت کرے گا۔ کس بات پر؟ بری صحبت پر۔ اور بری صحبت وہ ہے کہ جو گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اچھی صحبت وہ ہے، صحبت یہ ثابت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں جو لوگ رہے وہ کیا بنے؟ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جل شانہ ان کو جنت کی سند ان کی زندگی میں دے دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کس چیز کا اثر تھا؟ یہ صحبت کا اثر تھا۔ آج سب سے بنیادی چیز جہاں گناہوں سے بچنے کے اور طریقے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا خوف قائم کیا جائے، اللہ کا ڈر قائم کیا جائے، اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، رجوع الی اللہ ہو، وہاں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہم اپنی صحبت پر غور کریں کہ ہماری دوستیاں کن لوگوں سے ہیں، ہماری صحبت کن لوگوں سے ہیں۔ اگر دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں تو رات کو کس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا دوست ایک نعمت ہے آپ کی، بالکل بالکل، اچھا دوست، اچھی صحبت یہ شریعت سے ثابت ہے، اور اچھی صحبت کا ہونا ہر انسان کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر ہم باقی مہمانوں کی طرف چلتے ہیں کہ اچھا پروفیسر صاحب بلکہ آپ کی طرف ہی آ جاتی ہیں اسی کو آگے لے کر کہ جس اچھی صحبت کی انہوں نے بات کی کہ وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور جو بری صحبت ہے وہ پھر آپ کو بگاڑ دے گی۔ تو جو اچھے دوست ہیں، کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ خود ہوتے ہیں آپ کی کمپنی بھی ویسی ہوتی ہے، مین از نون بائی دا کمپنی کیپس۔ تو جو اچھا بندہ ہوگا اسی کو اچھا دوست کی طرف وہ اٹریکٹ ہوگا، اور جو بری روح ہوگی، بھٹکی ہوئی روح ہوگی، تو اس کے دوست بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہ ایسا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اسامہ صاحب نے بتایا کہ رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں، اور یہ جو ہمیں ایک مہینہ تقوی کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، جی اس کا کیا معنی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، یاتون الناس یوم القیامت حسناتم کا تہامت الجبال، قیامت والے دن لوگ آئیں گے، ان کی نیکیوں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں تہامہ کی جو پہاڑ ایسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ حکم دے گے ساری نیکیوں کو ختم کر دے گے، ختم نیکی کیا؟ فإن کے یہ جب تنہائی میں ہوتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جب لوگوں میں ہوتے تھے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتے تھے، اور جب کبھی ان کو تنہائی ملتی اللہ کی نافرمانی کرتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت کو ذہن میں رکھے۔ یہ وہ قوت ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی تبھی کرتا ہے جب اس کی سزا جو اس کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے۔ مثال اچھی تو نہیں لگ رہا، ایک بات سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ ایک 20 سالہ نوجوان کو ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیں، اس کے پہلے میں ایک حسین عالم کو بٹھا دیں، اس کے ساتھ ایک کمرے میں آگ جلا کے رکھ دیں، اسے کہیں اسے آج رات تم اس گزار کرو گے، لیکن اس کے بعد تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، کیا وہ گناہ کرے گا؟ انسان گناہ تبھی کرتا ہے جب اس کے ذہن سے اللہ کی پکڑ، اللہ کی پنشمنٹ، اللہ کی پکڑ اور پنشمنٹ اس کی غائب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں روزہ یہی پریکٹس کرا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی نگاہوں کے سامنے سمجھیں۔ قادسیہ کی بات ہے، یہ تقویٰ بھی بتا دوں، تقویٰ کیا چیز ہے۔ قادسیہ جب ہوا تو مال غنیمت سے قادسیہ مارکا عجیب مارکا ہے۔ اس مارکے کے بعد یہ 18 ہجری صدی کو ہوا۔ اس مارکے کے بعد ایران ہمیشہ کے لیے اسلامی قلمرو کا حصہ بن گیا، اور ساسانی حکومت جو صدیوں سے قائم تھی وہ ختم ہو گئی، ایران اسلامی ہو گیا۔ تو اس قادسیہ میں صحابہ کرام 20,000 صحابہ تھے، اور 2 لاکھ کے قریب رستم کی فوج تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس تقوی اور جس ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا، جب ایرانی ہاتھی لائے ان کے مقابلے میں، گھوڑے نہیں ٹھہر رہے تھے، صحابہ کرام گھوڑوں سے اتر گئے اور خود ہاتھیوں کے مقابلے میں آ گئے۔
रवायत में आता है एक एक वार से हों तो हाथी का सूंड काट देते थे। हाथी का जिस्म में सबसे सख्त उसका सूंड होता है, लेकिन इतनी कुव्वत, इतनी। जब माल गनीमत जमा किया जा रहा था, एक शख्स आए, सोने की भरी हुई, दिरहमों की भरी हुई बोरी लेकर आए जी। आकर हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा जो माल गनीमत जमा कर रहे थे, उसके ऑफिसर थे, उनको लाकर जमा रख दिया। हज़रत पूछने कहने लगे, जब देखा सोने से भरी हुई है, तो वो कहने लगे, हज़रत इसमें से कुछ रखा तो नहीं है तुमने? क्या कहते हैं उससे? अभी कहते हैं वल्लाहि ला अल्लाह मा अतई, तो कभी अगर अल्लाह का डर ना होता मैं कभी तेरे पास ना लाता। अल्लाह, ये वो चीज़ है यहाँ वो कुछ कर सकता, कुछ जानता भी नहीं था। यही वो रूह हमारे अंदर अल्लाह पैदा करने चाहिए। तकवा जिंदगी का उजाला है, तकवा जिंदगी की रोशनी है, तकवा इंसान मोमिन की जिंदगी का मेहवर है। हमारी सारी जिंदगी इस मेहवर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। हर हालत में हम अपने आप को अल्लाह की निगाहों के सामने हमारा रब हमें देख रहा है। आगे बिल्कुल बढ़ाएंगे कि हमें आदत हो जाती है वही गुनाहों की सारा साल करके, झूठ भी, गीबत भी, बुराई किसी की कर रहे हैं, किसी की दिल आजारी कर रहे हैं। तो अब ये हमने वापस किस तरह आना है? क्या तो प्यारी जिस जिसने रोजा रखा हुआ है वो सब विनर है, लेकिन सही तरह विनिंग को एंजॉय करना है ना, तो गुनाहों से बचना है। और कैसे बचना है ये हमारे आलिम हमें बता रहे हैं, क्योंकि वो होता ही है कि 11 महीने आपने गुनाह कर करके ख्याल ही नहीं किया अच्छा है, तो अब आ गए हैं तो वो रिवर्स करना भी एक मसला बन जाता है कि अब झूठ की, गीबत की, दिल आजारी किसी कर दी, वो ये कह रहा था, वो उसको आके उसने ये किया, उसने क्या, इनकी आदत हमें हो जाती है। क्या बात की कि अच्छा कुछ लोग होते हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं, झूठ बोलना बुरी बात है, बचपन से सीख रहे हैं। अच्छा कुछ लोग इतने झूठे होते हैं, उन्होंने छोटा सा झूठ बोल देना है, मतलब ऐसा झूठ बोल देगा जिस झूठ का फायदा ही नहीं, क्योंकि आदत हो गई, इतनी आदत हो गई कि उन्हें खुद नहीं पता कि हम झूठ बोलने चले जा रहे हैं। ये छोटी छोटी हमारी आदत कुछ बार इतनी बुरी होती है कि हमें नहीं पता होता, सामने वाले को पता होता है। इतने बड़े गुनाह हैं, उन्हें ये चंद गुनाह ऐसे हैं। और आप देखिए आज आपने छोटा झूठ बोला तो कल आप बड़ा भी बोलेंगे, आपको आदत हो गई। ये बड़े गुनाह हैं। मुफ्ती वली से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी मुफ्ती साहब, ये गुनाहों के बारे में, गुनाहों से कैसे बचा जाए? बहुत से कुछ मुझे बड़ा एक हमारे बड़े प्यारे हमारे टीम मेंबर है अब्दुल्ला वाला, बल्कि हमारे साथ आए हुए, यहाँ बैठे हुए। अब्दुल्ला किधर है? हमारे साथ कराची भी आए हुए हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है, हमसे छोटा था हम उसको बच्चा ही कहते हैं। तो अब्दुल्ला हमारे टीम में प्रोडक्शन में है, प्रोड्यूसर हैं। तो अब्दुल्ला मुझे कल बड़ी प्यारी बात बता रहे थे। वासिफ अली वासिफ को बहुत पढ़ते हैं और मैं भी बड़ा शौक से उन्हें पढ़ती हूँ। तो कहते हैं वासिफ अली वासिफ सब के लिखते हैं कि गुनाह की उम्र तौबा तक है, जिस वक्त तौबा कर ली सच्चे दिल से तो गुनाह खत्म हो गया। अब बहुत से लोग हैं जिनको गुनाह करने के बाद उनका ज़मीर बार बार कहता है कि ये तुमने क्यों किया, क्यों किया। ऐसे आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है, अक्सर सबके साथ होता होगा। अच्छा जब आपसे गुनाह करने के बाद आपका ज़मीर सवाल पूछना शुरू कर देता है, गुनाह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी गुनाह हो सकता है, तो हम जब तौबा का मौका हमें मिल रहा होता है तो क्या हम ये समझें कि अगर गुनाह के बाद हमें पछतावा होता है, निदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, हमें बुरा लग रहा होता है कि हमने ये क्या किया, तो क्या हम समझ सकते हैं कि हम मगफरत जो तलब कर रहे हैं वो हमें ऑलमोस्ट मिल चुकी है, क्योंकि हमें पछतावा हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको पछतावा होता ही नहीं होगा, ये सबको होता है। असल में कुछ तो लोग मुगफ्फल भी होते हैं, लेकिन हकीकत ये है, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें ये जो खाना पीना और दीगर ताल्लुकात से ज़रा इज्तिनाब, ये इसीलिए है कि आप पूरे साल अपने माजी और मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी, माजी पर एक निगाह, अपनी पूरी ज़िंदगी पर निगाह, तो ये जो निगाह है ना, यही आपको बनाती है कि आप तक़वा किस तरह पे इख्तियार करें। अच्छा, आप किस तरीके से। क़ारी साहब किस तरह से गुनाहों से बचना है, क्या ऐसे हम काम करें या जहन में रखें कि हम बच भी सकें? है ना, ये तकवे पर 2-3 दिन डिबेट होती रही है, बातचीत होती रही है कि तकवा क्या है, किस तरह गुनाहों से बचा जा सकता है। मेरे नज़दीक मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो हमें गुनाहों से बचाया जा सकता है तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कलाम इलाही से सबसे ज़्यादा गुनाहों से बचा जा सकता है। और इससे ये होगा कि एक तो आपके दराजात बुलंद होंगे, जितने अल्फाज पढ़ेंगे तो 30 गुना नहीं बल्कि 70 गुना रमज़ान मुबारक के अंदर आपके सवाब को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो बेहतरीन मौक़े ये हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की जाए। इसी तरह अगर आप समझ रहे हैं कि मुझसे कोई गलती हो रही है या मैं गीबत कर रहा हूँ, आप फ़ौरन इज्तनाब करके आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, तस्बीह लेकर अपने हाथों में बैठ जाएँ या आप उंगलियों पर गिनते रहें, तो ये भी एक बहुत गुनाहों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है कि आप इन कामों में मसरूफ़ कर लें। हाँ, अपने आप को आप दुरूद शरीफ में मसरूफ़ कर लें, तो इस तरह से भी आप गुनाहों से बच सकते हैं। बहुत प्यारी बात है। बहुत अच्छा।
अल्लामा साहब 1 मिनट के बाद फिर ब्रेक है भाई, ये ना करो अभी हमारा इम्तिहान ना लो। अल्लामा साहब बुरा नहीं मनाते, हमसे प्यार करते हैं। अगर तो ब्रेक इस तरह है तो नहीं। फिर ब्रेक ही बजाए। अच्छा नहीं वो सही कह रहे हैं भाई, प्रोडक्शन अब से देखिए ना करेंगे। different शहरों में इफ्तारी रोज़े का टाइम के- हो रहा है ना, इफ्तारी कभी का किसी time शहर, start हो किसी गया। शहर में, तो उस वजह से भी हमें जी। जल्दी जल्दी ब्रेक से अल्लामा साहब इसी हवाले से फरमाएं कि क्या गुनाहों का भी फिर उतना ही बढ़ जाता है कि असर के, जिस तरह नेकियों का है कि नफल फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का भी 70 गुना, तो अगर आप गुनाह करेंगे तो देखिए असल में गुनाह का जो तसव्वुर है उसमें सोचना ये चाहिए कि आप किसकी बारगाह में गुनाह कर रहे हैं। झूठ कहना बाज़ार में, घर में, मस्जिद में और खाने काबा में झूठ वही होगा, लेकिन मकाम की वजह से उसकी कदर व कीमत में इजाफा होगा या कमी होगी, क्या बात। और ज़मान के हवाले से उसकी अहमियत में कमी या ज़्यादती होगी। अब ये अब वक्त में भी अगर कमी है रमज़ान थोड़ी। मुबारक आए, जी। रमज़ान जब शयातीन को बांध दिया गया है, जी, जी। और ऐसे मौके पे इंसान अगर सूद खाता है तो इसका मतलब यह है कि वो सरापा सूद है। अल्लामा साहब जो गुफ्तगू आप फरमा रहे थे उसमें एक चीज़ मुझे, जिस तरह खाना वगैरह रखा जाता है अमूमन घरों में भी करीब आ जाता है, खुशबू भी आ रही होती है, ये बताएं कि इस वक्त क्या अमल करना चाहिए। मैंने आपको देखा आप तस्बीहात में मसरूफ़ रहते हैं, तिलावत कुरान पाक, बाकी उलमा हज़रात भी इस तरह कर रहे होते हैं, तो ये अब इफ्तार का जब करीब आ जाए तो अगर किसी के पास वक्त है, बजाय इसके कि हम सड़कों पर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खाने पीने पहले ही खाना ले आए, तो इस वक्त क्या अमाल करने चाहिए? दुआ में मसरूफ़ हो जाए। ज़रा देखिए कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में क्या फरमाया है। अल्लाह ने जितने भी अहकाम भेजे हैं, काम करने का हुक्म दिया है, फ़ेल के इर्तिकाब का, अंजाम का हुक्म दिया है, वो बंदों के लिए है। लेकिन एक काम ऐसा है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। सिर्फ एक काम है, और वो क्या है? नबी करीम और उनकी आल पर दुरूद। यानी ये जो काम है ये इतना अजीम काम है, इतनी अजीम इबादत है, तासीर के हवाले से इंसान की तकदीर बदलने की जो सलाहियत दुरूद में है, सलावात में है, वो किसी और इबादत में उस तरह से नहीं है जिस तरह से दुरूद शरीफ में है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा ना कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी ये काम करता है, फरिश्ते भी ये काम करते हैं। ए अहले ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम लोग भी ये काम करो। तो इसलिए जो सबसे बेहतरीन इबादत है वो दुरूद शरीफ है। और इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ का मतलब ये है कि आपने वाकई अहलुल बैत, नबी करीम और उनकी अहलुल बैत को खुश किया है अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए। और ये दुरूद आपके मकाम और मर्तबे को आगे बढ़ाता है, उसको कम नहीं करता। इसलिए बाज़ रिवायात में बताती हैं कि एक महफ़िल में अगर अहले महफ़िल दुरूद पाक की तिलावत करें तो वो फरिश्ते जिनको नाम ये अमल के हिसाब व किताब के लिए मुकर्रर किया गया है, वो अपनी पूरी तवानाई खर्च करते हैं, लेकिन उस दुरूद शरीफ के सवाब को गिनने से कासिर होते हैं। इस हद तक इस दुरूद शरीफ की अहमियत और कदर व कीमत बयान की गई है। इसलिए अगर इंसान बीमार है तो दुरूद शरीफ, गुनाह से बचना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें गुनाह से बचने के लिए भी अल्लाह की तौफीक चाहिए ना। अगर अल्लाह तौफीक न दे तो शैतान गालिब आता है, तो शैतान के गलबे से बचने के लिए बेहतरीन रास्ता दुरूद शरीफ है। बीमारी से निकलने के लिए बेहतरीन रास्ता दुरूद शरीफ है। दिल को जिंदा रखने के लिए बेहतरीन रास्ता दुरूद शरीफ है। अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए बेहतरीन रास्ता दुरूद शरीफ है। ज़हनी यकसुई के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, इर्तिकाज़ फ़िक्र के लिए बेहतरीन विर्द और बेहतरीन इबादत दुरूद शरीफ है। दुआ की मकबूलियत के लिए भी बेहतरीन इबादत और बेहतरीन ज़रिया दुरूद शरीफ है। कोई भी दुआ आप मांगे उससे पहले भी दुरूद मांगे, दुरूद पढ़ें, और उसके बाद भी दुरूद पढ़ें, आप देखेंगे वो दरमियान वाली दुआ आपकी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, दुआ के लिए मुझे अभी मैसेज आया कि मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। आप जानते हैं कि वो आईसीयू में थे, तो आप प्लीज़ अगर मगफिरत के लिए उनके लिए दुआ कर दें। कोरोना हुआ था उन्हें, और अभी अभी मुझे मेरे हस्बैंड का मैसेज आया। जितने लोग कोरोना से जो लड़े, और मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कि हमारी बहन ने बताया और ख़बर दी है कि इनके ससुर का अभी कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ है। तो ये साल जो है, ये साल वाकई एक बड़ा भारी साल है इस हवाले से कि इम्तहान है। ज़िंदगी और मौत तो खैर हर एक को आनी है, हर एक के मुकद्दर में मौत है, लेकिन बहरहाल इम्तहान का साल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितने भी लोग इस साल में कोरोना की वजह से दुनिया से गुजर गए हैं, उन सबको नबी करीम के साए में
उनकी बख्शिश फरमाए। उनकी मौत को अल्लाह शहादत तबारक की व मौत तआला फरमाए। अल्लाह शहादत की तबारक व मौत तआला से दुआ है कि हम सब की आक़िबत बखैर फरमाए। आमीन या रब्बल मरहूम आलमीन। जो आज दुनिया से चले गए हैं सबकी दुआ होनी चाहिए, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि आमीन अल्लाह या उनके रब्बल तमाम आलमीन, मग़फ़िरत गुनाहाने सगीरा और कबीरा को सर बख्श गुनाह अल्लाह दे माफ़ फरमाए। और उनकी बरज़ख की ज़िंदगी को आसान फरमाए और हम सब को कलिमा के साथ नबी करीम पर ईमान, यकीन और मोहब्बत के साथ दुनिया से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या रब्बल आलमीन। रमज़ान मुबारक में जो लोग इंतकाल कर जाते हैं उनके लिए भी कोई ख़ास ये है कि इतना ये बाबरकत में जाना तो सभी ने है, जी। लेकिन रमज़ान जैसे जुमे के दिन कोई फौत हो जाए ना तो उसके फजीलत है कि अल्लाह ताला उससे हिसाब किताब में सहूलत अता फरमाता है। ऐसे ही रमज़ान मुबारक, ऐसे ही ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, मुहर्रम और इसी तरह जो मुबारक अवकात हैं या मुबारक मौक़े हैं, मकामात हैं, यानी जैसे हरमैन शरीफैन है, मस्जिद अक़सा है, इस तरीके से अगर कुछ मकाम मुक़द्दस में इस तरह वो फौतगी हो जाती है या कुछ औक़ात मुक़द्दसा में उनकी फौतगी हो जाती है तो उससे उनमें सहूलत आती है। ये जो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान के ससुर की बात यहाँ हुई कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत नसीब फरमाए। वालिद की जगह है और बहुत इबादत गुजार थे। अच्छा, हदीस बहुत- में कभी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, शुगर पेशेंट थे और कभी कोई रोज़ा नहीं अल्लाह छोड़ा। ताला पहली बार उनको हुआ कि जज़ाए खैर कोरोना नसीब, हुआ ये कुछ मग़फ़िरत दिन पहले कामिला और फरमाए। ये 2 रोज़े छोड़े होंगे ज़िंदगी में। अच्छा, ससुर और सास ये माँ बाप की तरह है। कुरान बिल्कुल करीम ऐसे। ने दोनों को जो बताया ना, वजअलकुम नसबन व सहरा, कि अल्लाह ने तुम्हें 2 जो है ना ये सिलसिले दिए, एक नसब का है जिससे माँ बाप और एक ये जो मुसाहरत का है। तो इसमें बाज़ लोग ये कहते हैं कि बीवी के ऊपर जो है ना सास और ससुर का या दामाद के ऊपर सास ससुर के हुकूक नहीं है। नहीं, गलत कह रहे, उनके हुकूक हैं और उसी तरह जैसे माँ बाप के होते हैं। अच्छा, उसमें एक और बात ऐड करूँ वो ये कि ये जितने भी लोग कोरोना में फौत हो गए हैं ये वबा है। वबाओं में जो लोग फौत होते हैं शहीद का दर्जा है उनको शहीद का दर्जा है। हाँ, तो ये शहादत की मौत है। तो अल्लाह ताला इसमें जो लोग फौत हुए हैं अल्लाह सबकी शहादत को कबूल फरमाए। और जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम बंद है। हाँ, तो बाद में कहा कि इंशाअल्लाह जन्नत में इंशाअल्लाह और कल जुमा भी है, फुतिहत और अबवाब रमज़ान जन्नत। मुबारक। रमज़ान मुबारक भी है, जुमा भी है, जुमा भी इनको मिल रहा है। उनकी खताएं माफ़ फरमाए। बहुत से लोग इस तरह है कि इस वबा की वजह से रोज़े भी नहीं रख पाते, अल्लाह जो उनको बीमार माफ़ है फरमाए। उनके लिए अल्लाह क्या, ताला यानी वो बाद में फिर रोज़े देखो, रखेंगे रोज़ा जो या है बीमार है या वैसे ये जो रोज़ा तो जो अल्लाह की नेमत है, इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। और ये जो ज़िक्र फरमा रहे थे मौलाना साहब अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजने का, ये अमल ऐसा है कि जो शख्स अल्लाह के रसूल पर एक दफ़ा दरूद भेजते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह 10 मरतबा उसे दरूद भेजते। ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। जब ये नाम रसूल अकरम को आया, रसूल अकरम सजदे में पड़ गए। इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के साथ था, अल्लाह के रसूल एक दिन ऐसे ही गायब हो गए, चले गए, तो हम सब परेशान हुए, कहीं कहाँ चलेगा अल्लाह के रसूल। जब देखा कि एक बाग में है, आप सजदे में सर रख कर रो रहे हैं अल्लाह का, इतने लंबे सजदा किया आपने, इतना लंबा सजदा किया, मैं डर गया कहीं आपकी रूह मुबारक परवाज़ तो नहीं कर गई। तो मैंने आपको हिलाया, आपने सर उठाया, आपने फरमाया, आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने इतना लंबा सजदा कर दिया। कहने लगे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा। अल्लाह मुझे जिब्रील आए, उसने कहा अल्लाह ने ये कहा है वन सल्ला अलैका सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो एक मरतबा पर दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजेगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दफ़ा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करते हैं, एक दर्जा उसके 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं। अल्लाह ताला उसके यम वानो सय्यात, अल्लाह तो 10 गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं। ये ताल्लुक़ जो है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का ताल्लुक़ है। जिसको जितनी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी उतने अल्लाह के रसूल पर दुरूद पड़ेगा, और जिसको जितनी अल्लाह के रसूल पर दुरूद पड़ेगा उतने अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। इससे बढ़कर कोई कुर्बत नहीं है। हज़रत भाई काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं जब दुआ करता हूँ मैं आप पर दुरूद भेजता हूँ, है मैं आधी दुआ पढ़ता हूँ आपने आधा आप पर दुरूद भेजता। आपने फरमाया इनशेता अक्सर था, अगर चाहते और भी पढ़ सकते हो। या रसूलल्लाह मैं चौथी दफ़ा चौथे चौथाई कर दूँ और आगे बढ़ इतना कर दूँ। या रसूलल्लाह क्या मैं अपनी सारी दुआओं को आप पर दुरूद कर दूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम सारी दुआ को दुरूद कर दोगे इज़न अल्लाह यकफ़ी हाजतक का तुकफ़ा हाजतों का, अल्लाह तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर, अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर अल्लाह तेरे सारे गम दूर कर देगा।
अल्लाह यरफ़अ गम, तेरे गम दूर हो जाएंगे, तेरी सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। जब किसी को अल्लाह चाहिए कि अल्लाह उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाए, उसे चाहिए कि अल्लाह के रसूल पर कसरत से दुरूद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दुआ दुरूद के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। सुभान अल्लाह। जी 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 ज़रूर। ये सब की बात को कंप्लीट करूं सिर्फ एक जुमले से। देखिए, दुरूद की फजीलत के हवाले से बड़ी अच्छी बात हुई। दुरूद खुद क्या है, मुख्तसर तरीन दुरूद भी है और तूलानी तरीन दुरूद भी है, लेकिन दोनों का तअय्युन नबी करीम ने खुद फरमाया है। चूँकि फरमाया कि सल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद भेजो, लेकिन ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, दुम्बुरीदा सलात न भेजो। दुम्बुरीदा क्या है, जिसमें मेरी आल को शामिल ना किया जाए। लिहाजा जब हम सलवात भेजते हैं तो दुरूद इब्राहीमी में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आल इब्राहीम को हर सूरत में हम शामिल करते हैं, ये करीम तो औला है, लिहाजा आपकी आल को भी हर सूरत में हमें शामिल करना है, वरना दुरूद कामिल नहीं है। अब अगर लंबी आप नहीं पढ़ सकते तो फिर उसको मुख्तसर कर लें, लेकिन जब मुख्तसर करें तो कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन या व आलि मुहम्मदिन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सूरतों में आल शामिल हों। इसी तरह से जब कभी नबी करीम का नाम आए तो नबी करीम के नाम के साथ दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले व आलिही को भी शामिल कर लें, ताकि हमारी ये दुआ कामिल हो और उसका अजर भी हमें कामिल मिले। अच्छा, दुरूद इब्राहीमी जो है इसकी फजीलत ज़्यादा है क्योंकि नमाज में भी शामिल है। नमाज दुरूद इब्राहीमी के बगैर इनकम्प्लीट है, तो उसका सवाब भी ज़्यादा है। कोई शक नहीं, जामे है ना, जामे दुरूद है, दूसरे दुरूद से ज़्यादा है। जब कहते हैं देखिए, मैंने अर्ज किया ना, तूलानी दुरूद और मुख्तसर तरीन दुरूद। आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, कामिल तरह है और उसमें हज़रत इब्राहीम का भी तज़किरा है, लेकिन अगर आप मुख्तसर पढ़ना चाहें तो नबी करीम पर और उनकी आल पर दुरूद पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी अपनी जगह कामिल और मुकम्मल दुरूद है। अगर ये आप पढ़ते हैं, अफजल तरीन करार दिया गया है। नबी करीम पर, नबी करीम की आल पर दुरूद के हवाले से जो आयत उतरी है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, उसमें हज़रत इब्राहीम का तज़किरा नहीं है, लेकिन हज़रत इब्राहीम वाली दुरूद भी पढ़ें आप, बरकत है, चूँकि बहरहाल अल्लाह के उलुल अज़म पैगम्बर। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपनी बहन से हम अफसोस करते हैं, उनके ससुर साहब को अल्लाह ताला जवारी रहमत में जगह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मकबूल दुआओं में उनको पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमाए। दुरूद पाक पे बात हो रही है। देखिए, आज हम बख़ील किसे कहते हैं? बख़ील उसे कहते हैं जो माल खर्च करने में बख़ीली का इजहार करे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नज़दीक बख़ील कौन है? तो आपने फरमाया, अल बख़ीलु मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर, मेरी आल पर दुरूद न पड़े, वो बख़ील है। सही बात है। तो गोया हमारी महाफिल में, हमारी मजालिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस कदर ज़िक्र होता है, कितने लोग दुरूद पढ़ते हैं, ये अक्लमय्ये की बात है। सही बात। और हम दानिस्ता तौर पर भी नाम सुनते हैं और फिर भी दरूद पाक नहीं पढ़ते, हमें बड़ी गफलत है। और दुरूद पाक कितनी बड़ी नेमत है। डॉक्टर फिजा, चूंकि इस वक्त आप अफसोस के और गम की कैफियत में हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये बड़ी इस गम की कैफियत में पता चला कि लाइव ट्रांसमिशन मैंने अक्सर सुन रखा था कि आप लाइव हैं, आप अपना काम करें, काम भी कहते हैं जहाद, अगर आप दिल से करें और ऐसे में अपने जज्बात पे काबू रखना, एक इंसान है बिल्कुल, लेकिन ये भी काम इसको भी कंटिन्यू करना। तो दुरूद शरीफ का बड़ा मुक़द्दस उन्वान है। इस उन्वान पर मैं आपकी दिलजोई के लिए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा दस्तरखान लगा हुआ था, तो खुशक रोटी थी, बिल्कुल सारे सहाबा इकराम भी बैठे हैं और आप खुशक रोटी के साथ पानी का घूंट पी रहे हैं और खुशक निवाला खा रहे हैं। तो अचानक शहद की मक्खी आई, उस मक्खी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बिन बनाया। यूँ लगा सहाबा इकराम ने महसूस कर लिया कि आपसे कुछ कहा गया। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी आपसे क्या कह रही है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप और आपके सहाबा और आपके अहले बैत खुशक रोटी ना खाएं, पानी ना पिएं, करीब शहद है, आप किसी को भेजें वहाँ से शहद ले आएँ। तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों शख्सियात को भेजा। अब आगे मक्खी रास्ता बता रही है और पीछे ये दोनों शख्सियात जा रही हैं। खुलासा मुख्तसर, वो शहद सारा उतार कर लाया गया, दस्तरखान पे रखा गया, वो शहद की मक्खी दोबारा हाज़िर हो गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहद की मक्खी से शहद बनाने का तरीका पूछा कि आप शहद कैसे बनाती हैं?
اب شہد کی مکھی حضور کو طریقہ بتا رہی ہے، یا رسول اللہ ہم بڑے دور کا سفر کرتی ہیں، ہمارا ایک اپنا قانون ہے کہ کوئی مکھی اگر گندگی پر، ناپاکی پر، نجاست پر بیٹھے گی ہم اسے قتل کر دیتی ہیں، وہ دوبارہ ہمارے گیم میں، ہمارے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ ہم یہ پھول لے کر آتی ہیں۔ حضور نے عجیب سوال کیا، فرمایا یہ پھول تو اکثر خوبصورت تو ہوتا ہے مگر کڑوا بھی ہوتا ہے، تو اسے میٹھا کیسے کرتی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہم جب وہ رس نکالتی ہیں تو وہ پتلا ہوتا ہے، اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فرمایا یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ اس وقت اٹھ کر ہم آپ پر درود پڑھتی ہیں تو وہ کڑوا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کرے کہ اس خلاصہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی درود پڑھے تو شہد میٹھا ہو جائے۔ مسلمان اپنے نبی کی محبت میں درود پڑھے، اپنے پیغمبر کو، پیغمبر کے اصحاب کو، اہل بیت اعظام کو، ہر وقت اپنی زبان کو تر و تازہ رکھے، قلوب و جگر کو تر و تازہ رکھے، اس کی زندگی میں مٹھاس کیوں نہیں آئے گی؟ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت۔ ولی صاحب 1-2 منٹ رہ گئے پھر اس کی افطاری ہے، یہی کہ پھر ہمارے اندر بھی مٹھاس آ جائے، میٹھی گفتگو ہو، اخلاق اچھا ہو، جس طرح آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک ہے یا اسلام ہے، دیکھیں اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، سرنڈر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت اور آپ کی سیرت اور کردار وہ اخلاق ہے، وہ مسکراہٹ ہے، ابتسامہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے مسکرا گئے نا، آپ نے اس کو ایک عطیہ دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے طلاقۃ الوجہ عطیۃ ثانیہ، آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ ذرا ہنس کر ملے، یہ گویا آپ ان کو عطیہ دے رہے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں نا کہ اسمائل از چیریٹی، ہاں بالکل، کسی کو مسکرا کے دیکھیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے نا، یہ حدیث میں یہ صدقہ کیا بانٹنا، کسی کو دینا، اپنے میں سے کسی کو دینا۔ بالکل بالکل۔ اچھا اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں پوری دنیا میں، معاملات میں، کاروبار میں، مختلف چیزوں میں، لیکن بہرحال خصوصاً رمضان مبارک کے حوالے سے یا پھر افطاری کے حوالے سے یا عالم دین ہو یا آپ کی طرح اینکر جو لوگوں کو بلا رہے ان کو بلوا رہے ہو نا، تو ہم سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسکراہٹ ہر وقت جو ہے نا ہمارا، اور مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ فضا کی جو ہے نا سسر کے لیے پھر ایک مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس موقع پر بھی آپ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول